Hello, 7th class. This is your math subject. Children, today we are going to start our new chapter 10. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Triangle and its property. So, median of a triangle. What is median? So, the line segment join a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side. So, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मीडियन बोलेंगे. यहाँ पर आपको गिवन है फिगर में ट्रायंगल हमें गिवन है. सो AD जो है वो मिड पॉइंट है. ओके नाउ यहाँ पर आप देखेंगे हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के. फर्स्ट इज acute angle triangle, second is right angle triangle and third is absolute angle triangle. Okay, and यहाँ पर कुल टिप में आप देखेंगे median always divide the opposite side in the ratio of 1:1. Now comes next page. Altitude of a triangle. So what is altitude? The perpendicular line segment from a vertex of a triangle on its opposite side is called the altitude of the triangle. Okay, यहाँ पर आपको triangle ABC में altitude ड्रॉ करके दिखाया हुआ है. AD is altitude. Okay, now यहाँ पर examples given है. First example is acute angle triangle, second right angle triangle and third is absolute angle triangle. Okay, now comes relation between median and altitude of a triangle. So first is in an equilateral triangle, the median and altitude are same. Okay. Second is an isolate triangle, only the median to the base and altitude to the base are same. Third is the rest median of an isolate triangles and all the medians of a scalene triangle have no relation. Now comes next एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो ट्रायंगल होता है उसके ऑल कौन मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. ओके नाउ कम्स नेक्स्ट. नाउ प्रूफ ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर्टी यूज करके दिखाई हुई है. सो इससे हमें क्या रिजल्ट निकला है? अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल. वन से ज्यादा हमारा राइट एंगल नहीं होगा ट्रायंगल में. एंड सेकंड, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन एब्सोल्यूट एंगल. ओके एंड थर्ड इज इन अ राइट ट्रायंगल द अदर टू angles are acute and their sum is 90 degree. So the other two angles is a right triangle and are complementary. Okay, now comes start our exercise 10.a. A part, select the correct answer. First question, in an isolate triangle one base angle is 70 degree, the other two angles are, so one is our 70 सेम होगा हमारा आइसोलेट ट्रायंगल है तो 70 + 70 - 180 करेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं 70 + 70 + x = 180. सो इनको प्लस करके माइनस कर देंगे इक्वल टू के अदर साइड जाकर. सो x = 40 डिग्री इज आवर आंसर. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Now comes B part. Second question, in a right angle triangle the angle other than the right angles are, so हमारा क्या होगा? B option is correct, acute angle. Now question number 3, if we join a vertex in a point and opposite side which divide that the side is the ratio of 1:1, then what is the special name of that line segment? So क्या नाम होगा उसका? A option is correct, median. Okay, now question number 4, if two angles of a triangle are 110 and 35 देन इट इज अ, सो आपको फाइंड करना है ये कौन सा ट्रायंगल है. सो यहाँ पर आप देखेंगे 180 में से जो हमें टू एंगल्स गिवन है उनको प्लस किया है एंड देन माइनस किया 180 से. सो 35 डिग्री इज आवर थर्ड एंगल. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5. सो इफ एन एंगल if the angle of a triangle are the ratio of 1:1:2 then it is, so ये किस टाइप का हमारा ट्रायंगल होगा? so यहाँ पर आप देखेंगे 1 + 1 + 2 x हमने इनको रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है ना. 180 आना चाहिए हमारा. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 45 मीन्स वन एंगल इज आवर 45, अदर 45 एंड थर्ड इज 90 डिग्री. सो ये किस टाइप का हमारा ट्रायंगल होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, a right isolate triangle. Okay, now comes B part, solve the following. First question is draw a rough sketch for the following triangles. So यहाँ पर आपको rough sketch draw करने हैं. So A part आप देखेंगे in triangle PQR PS as a median. So यहाँ पर आपको PQR ड्रॉ किया है ट्रायंगल. सो इसमें PS जो है मीडियन है हमारा. रफली हमें ड्रॉ करना है ये स्केच. नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, सी इन योर बुक.
in triangle ABC, AD, BE and CF as a altitude and also find the orthocenter. So आपको यहाँ पर ABC ड्रॉ करना है ट्रायंगल एंड इनके आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं. AD, BE एंड CF हमने ड्रॉ किया है. ओके एंड देन इनका ऑर्थोसेंटर भी ड्रॉ करना है. सो दिस इज आवर ऑर्थो सेंटर. ओके नाउ सी पार्ट आपको ड्रॉ करना है इन ट्रायंगल DEF. आपको DEF ड्रॉ करना है एंड देन DL आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में. ओके सो DL इज द एक्सटीरियर एल्टीट्यूड. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर सेकंड. In each of the following cases, the measure of the three angles are given. State which of the following groups from a triangle. So आपको फाइंड करना है कि कौन सा हमारा ट्रायंगल बनेगा. सो ए पार्ट इज 65, 35 एंड 80 डिग्री हमें एंगल दिए गए हैं. सो हम इनके सम फाइंड करेंगे. इफ आवर सम इज 180, सो इट मीन्स द ट्रायंगल इज पॉसिबल. इफ हमारा जो सम है वो 180 नहीं आएगा तो इट मीन्स ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. ओके सो ए पार्ट आप देखेंगे इनका सम हम कर रहे हैं. सो 180 डिग्री, सो द ट्रायंगल इज पॉसिबल. ओके नाउ बी पार्ट आप देखेंगे बेटा 45, 45 एंड 60. सो इनको प्लस करेंगे सो 150. सो यह 180 के इक्वल नहीं है. सो द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3. The angle of a triangle are in the ratio of 2:3:5. Find the angles. So यहाँ पर आपको रेशो दिए गए हैं एंगल्स के, आपको एंगल्स फाइंड करने हैं. सो एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर लिया. 2x + 3x + 5x = 180 आना चाहिए बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ओके नाउ प्लस करेंगे यहाँ पर 10x = 180 डिग्री. x की वैल्यू फाइंड की, सो डिवाइड कर देंगे 10 से, 18 डिग्री आ गया. नाउ यहाँ पर हम जो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग हमने पुट किया था, सो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे. 2 × 18, 3 × 18 एंड 5 × 18. सो आवर एंगल्स आर 36, 54 एंड 90. ओके नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. सी इन योर बुक. In triangle XYZ, the measure of angle X is 30 degree greater than the measure of angle Y and angle Z is a right triangle. Find the measure of angle Y. आपको angle Y find करना है. So इसको firstly हमने let angle Y = B X मान लिया हमने. नाउ यहाँ पर आप देखेंगे एंगल x = 30 डिग्री प्लस y एंगल y है एंड एंगल x जो है वो बेटा वो 30 डिग्री प्लस y हमने x माना है. सो यहाँ पर हम x रख देंगे एंड z हमें 90 डिग्री गिवन है. ओके सो यहाँ पर हम एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z करेंगे = 180 आना चाहिए बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. सो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा एंगल x जो है हमने 30 + x लिया है. ओके एंड एंगल y x एंड एंगल z इज 90 डिग्री. सो यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो x = 30 डिग्री. सो x हमने क्या माना था y एंगल y. सो y एंगल y इज 30 डिग्री इज आवर आंसर. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5. सी इन योर बुक. In a right angle triangle, if an angle measures 35 degree, then find the measure of the third angle. So आपको third angle find करना है. So one angle हमें given है 35 and other is right angle triangle है. So other हमारा 90 डिग्री होगा. So जो हमने find करना है उसको हमने x मान लिया. So x + 35 + 90 डिग्री = 180. Okay. Angle sum property of triangle. Now यहाँ पर x की वैल्यू find करेंगे. So x = 55 डिग्री is our answer. Now comes question number 6. Find the value of x, y and z in each of the following triangles. So यहाँ पर आपको ट्रायंगल गिवन है बेटा. यहाँ पर आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इन ABC में आप देखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C का सम जो होगा 180 होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. नाउ एंगल A जो है बेटा वो 60 + 30 है. ओके एंड एंगल B हमारा 60 गिवन है एंड एंगल C हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ पर इन सबको प्लस करेंगे एंड देन माइनस करेंगे. z = 30 डिग्री हमारा आ गया. नाउ इन ट्रायंगल ADC में आप देखेंगे सो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 30 एंड दिस इज y एंड z की वैल्यू हमने फाइंड की है 30 डिग्री. सो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी आ जाएगी. ओके ये इनका सम भी 180 होना चाहिए बिकॉज ये भी एक ट्रायंगल वो है ट्रायंगल है. ओके सो यहाँ पर आप देखेंगे y = हमारा आ गया 120 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल A B एंड D में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अब. सो A एंड B आवर 60 60 हैं
एंड x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सो इक्वल टू 180। नाउ यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 60 आ गई, सो x y z हमारे क्या आ गए, x हमारा 60 आ गया, y हमारा 120 एंड z इक्वल टू 30 डिग्री इज आवर आंसर। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व b एंड c पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा आपको बी एंड सी पार्ट गिवन है, फर्स्टली यू डू इट योर सेल्फ एंड देन चेक योर आंसर्स। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7। In triangle ABC, if 3 angle A equal to 6B equal to 8C, calculate the measure of angle A, B and C. ओके, आपको ABC ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड करनी है एंगल की। सो यहाँ पर आप देखेंगे लेट 3A इक्वल टू 6B इक्वल टू 8 एंगल C इक्वल टू X। ओके, ये आपको गिवन है। सो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल A की वैल्यू हमने फाइंड की X अपॉन 3, बिकॉज ये हमारा 3 के इक्वल है। सो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल बी की हम सेम फाइंड करेंगे, x इक्वल टू x अपॉन 6 हमारा आ गया। ओके, एंड जो हमारा एंगल सी है वो हो जाएगा x अपॉन डी। यहाँ पर हमने एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम इन सबको प्लस कर देंगे, x प्लस 3 x अपॉन 6, x अपॉन 6 एंड x अपॉन 8 को हम प्लस करेंगे। सो इनका जो सम आएगा बेटा वो 180 आएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ यहाँ पर एलसीएम फाइंड करके इनका सम करेंगे। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 288 डिग्री। ओके, नाउ यहाँ पर हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो एंगल ए हमारा क्या था, x अपॉन 3। सो x के प्लेस पर हम 280 पुट करेंगे बिकॉज हमने फाइंड किया है। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, सो एंगल ए की वैल्यू हमारी आ गई 36। नाउ सेम हम बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो बी इज 48 एंड सी इज 36 इज आवर आंसर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8। The angles of a triangle are 2x minus 7 degree, x plus 25 degree and 3x plus 12 degree. Find the measures of the angle. आपको मेजर करने हैं एंगल्स। सो फर्स्टली आपको जो 3 एंगल्स गिवन है उनको हम प्लस करेंगे। सो उनका सम हमारा 180 आना चाहिए। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे जो x की टर्म्स है उनको हमने प्लस किया एंड जो हमारे एंगल्स की टर्म्स है उनको हमने प्लस किया। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, कैलकुलेट किया 25 हमारा आ गया। नाउ 2x माइनस 7 डिग्री इज आवर फर्स्ट एंगल। सो x की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 25, x हमारा 25 आया है। सो 25 मल्टीप्लाई करेंगे 50, देन माइनस 7 इक्वल टू 43 इज आवर फर्स्ट एंगल। नाउ सेम हम सेकेंड एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे x प्लस 25। सो 25 प्लस 25 इज 50 इज आवर सेकेंड एंगल। नाउ थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। सो 87 degree is our third angle. Now comes question number 9. In triangle ABC DE parallel to BC, find the value of XY and Z. आपको XY Z की वैल्यू फाइंड करनी है। So DE parallel to BC and transversal AB cut them, इनको कट किया। So ट्रायंगल ADE एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये हमारे इक्वल होंगे। सो x इक्वल टू 30। ओके, यहाँ पर ये और ये हमारे इक्वल होंगे एंड हेयर 40 एंड y हमारे सेम होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, सो y इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 30 आया। नाउ हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस इज आवर ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है ADE। ओके, सो इसके 3 जो हमारे एंगल्स हैं उनका सम 180 आना चाहिए। सो ए हमने जेड पुट किया है। ओके, एंड डी हमने फाइंड किया बेटा, एक्स जो हमने फाइंड किया वो 30, वाई हमने फाइंड किया 40। सो यहाँ पर हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, 110 डिग्री इज आवर आंसर। ओके, सो एक्स इक्वल टू 30, वाई इक्वल टू 40 एंड जेड इक्वल टू 110 डिग्री इज आवर आंसर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10. सी इन योर बुक. In triangle ABC, angle A equal to 50 degree, angle B equal to 70 degree and bisector of angle C meets AB and D as shown in the adjoining figure. Find the measure of angle ADC. आपको angle ADC find करना है। Okay, so in triangle ABC में आप देखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल A इज गिवन 50 डिग्री एंड एंगल B इज गिवन 70 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल C फाइंड करेंगे। सो एंगल C 60 डिग्री हमारा आ गया कैलकुलेट करके। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे बेटा एंगल DAC प्लस एंगल DC
ADC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमारा वन ट्रायंगल बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा 50 डिग्री है, ये हमने फाइंड करना है, एंड ये हमारा 30 डिग्री आया है। ओके, सो 180 हमारा होना चाहिए। सो यहाँ पर एंगल ADC की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस किया है हमने, सो 100 डिग्री हमारा आंसर आ गया। सो एंगल ADC इक्वल टू 100 डिग्री। Now comes question number 11. See in your book, find the measure of angle PON and angle NPO in the adjoint figure. आपको figure given है, इसमें आपको angles find करने हैं. So firstly in triangle LMO, so angle OLM plus LOM plus OML equal to 180 degree because ये triangle बन रहा है. So ये हमें given है 70 degree and this is ये हमें फाइंड करना है, एंड दिस इज 20 डिग्री। नाउ इनको प्लस करेंगे, एंगल LOM की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री आ गया। सो एंगल LOM इक्वल टू एंगल PON। सो ये बिकॉज ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, सो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पर एंगल PON की वैल्यू हमने फाइंड की है। ओके, 90 डिग्री हमारा आया है। नाउ इन ट्रायंगल OPN, सो OPN में अब देखेंगे PON प्लस PNO इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ ये हमारा 90 डिग्री है, एंड ये हमें फाइंड करना है, एंड दिस इज 70 डिग्री। ओके, सो इनका सम 180 आना चाहिए। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे हमने एंगल OPN की वैल्यू फाइंड की है, इनको माइनस करके। सो दिस इज आवर 20 डिग्री। सो ये हमारा एंगल NPO हमारा आ गया 20 डिग्री। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12. See in your book, the side AB and AC of triangle ABC are produced to P and Q respectively. The bisector of angle PBC and angle QCB intersect at O. Prove that, आपको प्रूव करना है बेटा, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC. सो यहाँ पर आप देखेंगे आपको फिगर गिवन है। सो इन दिस फिगर एंगल ABC प्लस एंगल CBP इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है ये हमारा। सो इनका हम हाफ कर देंगे। सो हमारा आ जाएगा हाफ ABC प्लस CBO इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ CBO की वैल्यू फाइंड करेंगे, 90 डिग्री माइनस 1/2 ट्रायंगल ABC। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे अगेन हमारा ये लीनियर पेयर है ACB प्लस BCQ। ओके, ये भी हमारा 180 डिग्री आएगा। सो इसका भी हाफ करेंगे। सो यहाँ पर एंगल BCO हमारा आ गया 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ACB। सो इन ट्रायंगल OBC में आप देखेंगे एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 बिकॉज अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री माइनस हाफ हो जाएगा हमारा ABC, ऊपर हमने फाइंड किया है, एंड देन प्लस 90 डिग्री माइनस 1/2 ट्रायंगल ACB, देन प्लस BOC इक्वल टू 180। 1 एंड 2 जो हमने फिगर फाइंड की थी वो हमने पुट की है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे हाफ एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB माइनस 1/2 एंगल BAC एंड BOC इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 180। सो माइनस कर देंगे हमारा इक्वल टू के अदर साइड जाकर माइनस में हो गया हाफ एंगल BAC। सो यहाँ पर आप देखेंगे बिकॉज ये हमारे 180 डिग्री हैं। ओके, यहाँ पर इसलिए हमने 180 पुट किया है। सो एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, इसका हाफ किया 90 डिग्री एंड माइनस 1/2 एंगल BAC। सो यही हमें प्रूव करना था बेटा। सो हैंड्स प्रूव। नाउ children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.